I am Swarnika Verma, UGC NET educator from SLB classes. Today we are going to do some MCQs based on Information Technology Act, IT Act in Commerce, subject code 08, paper 2 for NTA UGC NET JRF. But before starting this, I wanted to say something about my YouTube channel SLB classes. If you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe. And for subscription, hit the bell icon. And then you will get a notification related to my latest video. And lastly, follow me on Instagram. Now guys, here we can see some questions are given on the board. First one is, when IT Act 2000 came into effect, means IT Act Information Technology Act 2000 कब effect में आया है? Option A October 17, 2000, Option B October 17, 2001, Option C November 11, 2000 and Option D November 11, 2001. So right option is option A October 17, 2000 को IT Act effect में आया था. Okay. Now come to question 2. How many schedules are there in IT Act 2000? So IT Act 2000 में कितने सारे शेड्यूल गिवन है? Option A 3, Option B 4, Option C 6, Option D 2. So right option होगा option 4. It means 4 schedule given है IT Act 2000 में. Okay. Now come to question 3. Which is the act which provides legal framework for e-governance in India? It means कौन सा लीगल फ्रेमवर्क है जो प्रोवाइड करता है ई गवर्नेंस इन इंडिया, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कौन प्रोवाइड करता है? देखते हैं. फर्स्ट वन इज आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008, ऑप्शन बी इंडियन पेनल कोड, ऑप्शन सी आईटी एक्ट 2000 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इंडियन पेनल कोड प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया. मीन्स कौन प्रोवाइड करता है? इंडियन पेनल कोड प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क e-governance in India के लिए. Okay. Now guys, come to the next question. Question 4. Which section of IT Acts deals with the legal recognition of electronic records? Okay. So according to question, कौन से IT Act के सेक्शन में बताया जाता है लीगल रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स? मतलब लीगली जो भी पहचान होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का, वो कौन से सेक्शन में बताया जाता है IT Act के? So option A section 2, option B section 5, option C section 6, option D section 4. So right option होगा option D. It means section 4 में बताया जाता है legal recognition of electronic records. Okay. Now question 5. The section deals with legal recognition of digital signature. यहाँ पर था legal recognition of electronic records और यहाँ पर बताया जा रहा है legal recognition of digital signature. It means लीगली जो भी सिग्नेचर होता है, डिजिटल सिग्नेचर होता है, वो लीगली उसका पहचान क्या है, वो कौन से सेक्शन में बताया जाता है? ऑप्शन ए सेक्शन 3, ऑप्शन बी सेक्शन 5, ऑप्शन सी सेक्शन 6, ऑप्शन डी सेक्शन 4. सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी. इट मीन सेक्शन 5 में बताया जाता है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर आईटी एक्ट में. ओके. नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 6. What is or are component of IT Act 2000? Okay. So IT Act 2000 का कंपोनेंट्स कितने हैं देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर्स, बी रेगुलेशंस ऑफ सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज, सी डिजिटल सर्टिफिकेट्स एंड डी ऑल ऑफ दिस. सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. इट मींस लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर्स भी है, रेगुलेशंस ऑफ सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज भी है एंड सी डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी है. ओके. Now guys, come to the next question. Question 7. The section deals with the use of electronic records and digital signature in government and its agency. Option A section 3, option B section 5, option C section 6 and option D section 7. So according to question, this section means इन विच सेक्शन, मतलब सेक्शन बताना है जो डील करता है यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी. मतलब सरकारी चीज और उसके एजेंसी में जो डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यूज होता है वो कौन से सेक्शन के तहत आता है? सो ऑप्शन ए सेक्शन 3, ऑप्शन बी सेक्शन 5, ऑप्शन सी सेक्शन 6 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 7. सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. सेक्शन 6 में यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज. ओके. नाउ क्वेश्चन 8.
Major amendments to IT Act 2000 was introduced in the form of IT Amendment Act 2008 which came into effect on, मतलब मेजर अमेंडमेंट जो सुधार किया गया है आईटी एक्ट 2000 का वो इंट्रोड्यूस हुआ है इन द फॉर्म ऑफ आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008. ओके, मतलब आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के नाम से उसको इंट्रोड्यूस किया गया है विच केम इनटू इफेक्ट ऑन, मतलब वो आया है इफेक्ट में कौन से डेट में देखते हैं. ऑप्शन ए 1 जून 2008, ऑप्शन बी 27 अक्टूबर 2009, ऑप्शन सी 27 अक्टूबर 2008, 3 जुलाई 2009. सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 27 ऑफ वो इफेक्ट में आया है. ओके, आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008. नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of IT Acts deals with hacking of computer systems and its penalties. ओके, मतलब कौन से सेक्शन के तहत जो आईटी एक्ट डील करता है हैकिंग ऑफ कंप्यूटर, अगर कोई कंप्यूटर हैक हो गया है तो उसकी पेनल्टीज क्या क्या होगी, वो कौन से सेक्शन के तहत आएगा. ऑप्शन ए सेक्शन 65, ऑप्शन बी सेक्शन 66, ऑप्शन सी सेक्शन 62 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 67. सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी. इट मीन्स सेक्शन 66 के अंदर क्या होता है, आईटी एक्ट डील्स विथ हैकिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स पेनल्टीज. मतलब सेक्शन 66 के अंदर क्या होता है, जो भी हैकिंग होता है कंप्यूटर से रिलेटेड उसमें आता है और उसका पेनल्टी जो जो लगेगा वो सेक्शन 66 में आएगा. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 10, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर हैकिंग ऑफ कंप्यूटर्स. ओके, सो अगर कोई कंप्यूटर हैक कर रहा है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट बना है, क्या सजा होगा, देखते हैं. ऑप्शन ए 3 years of imprisonment or 10 lakh rupees penalty or both. B life imprisonment and C 3 years imprisonment or 5 lakh rupees penalty or both. D 3 years imprisonment or 2 lakh rupees. Okay, so right option होगा ऑप्शन C, मतलब 3 years imprisonment मतलब 3 साल का जेल और या तो 5 लाख रुपए पेनल्टी और बोथ, मतलब या तो 3 साल का जेल हो सकता है या तो 5 लाख रुपए पेनल्टी हो सकता है या तो दोनों ही हो सकता है. ओके, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. नाउ कम टू क्वेश्चन 11, विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट डील्स विद साइबर टेररिज्म. सो कौन से सेक्शन में आईटी एक्ट के साइबर टेररिज्म के बारे में बताया जाता है. सो ऑप्शन ए सेक्शन 66C, ऑप्शन बी सेक्शन 66B, ऑप्शन सी सेक्शन 66F, ऑप्शन डी सेक्शन 66A. सो राइट ऑप्शन होगा सेक्शन 66F. ओके, सो सेक्शन 66F डील्स विथ साइबर टेररिज्म ऑफ आईटी एक्ट. ओके, नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 12, विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट वाज इनवैलिडेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सो कौन सा सेक्शन है आईटी एक्ट का जो रद्द किया गया है सुप्रीम कोर्ट से. ओके, सो देखते हैं. सेक्शन 66F, बी सेक्शन 66B, सी सेक्शन 66D एंड डी सेक्शन 66A. सो राइट ऑप्शन होगा सेक्शन 66A को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनवैलिडेटेड किया है आईटी एक्ट में, मतलब कि सेक्शन 66A को रद्द कर दिया गया है और रद्द करने वाला कौन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन 13, द डेट ऑन विच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनवैलिडेटेड सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कौन सी डेट को सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट किया था सेक्शन 66A को, मतलब रद्द किया था सेक्शन 66A को आईटी एक्ट 2000 के. सो ऑप्शन ए 24 मार्च 2015, ऑप्शन बी 31 मार्च 2015, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015 एंड ऑप्शन डी 1 जून 2015. ओके, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 24 ऑफ मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनवैलिडेट किया था सेक्शन 66A को ऑफ आईटी एक्ट 2000. ओके, सो इनवैलिडेट मीन्स रद्द किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जरिए सेक्शन 66A को. राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए 24 ऑफ मार्च 2015. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन 14, विच आर दी सेक्शंस ऑफ आईटी एक्ट डील्स विद क्रेडिट कार्ड फ्रॉड. ओके, सो इन सब
ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो भी फ्रॉड होता है उसमें वो डील करता है सेक्शन। सो ऑप्शन ए देखते हैं 42, 67, 67A एंड 67B सेक्शन। ऑप्शन बी 66, 66C एंड 66D सेक्शंस। ऑप्शन सी 43, 66, 66C, 66D सेक्शन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, मीन्स 42 सेक्शन, 66 सेक्शन, 66C सेक्शन एंड 66D सेक्शन जो है डील करता है, IT एक्ट डील्स विद द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। मतलब जो भी क्रेडिट कार्ड फ्रॉड जो भी होता है वो कौन से सेक्शंस में आ जाता है, 43, 66,